Hello students, today we are going to teach trigonometry and it is the second chapter of 11th class. Before starting signs of t ratios, I will simply tell you what are t ratios in an easy way. So what are t ratios? You know we have 6 t ratios. And this is right angle triangle, 90-degree angle theta is here, OMP, and you know everything about sine theta, cos theta and tan theta. So what is sine theta equal to? Sine theta, I am just going to repeat it because you already know it, 10th class students already know it, and 11th class students are also known to these ratios. So sin theta is equal to MP upon OP. It is the ratio of perpendicular and hypotenuse. This is base. So this is perpendicular upon hypotenuse. And what is cos theta? It is equal to base upon hypotenuse. That is OM upon OP, base upon hypotenuse. And tan theta is equal to this upon this MP upon OM. That is perpendicular upon base, and this is equal to 1 upon cot theta or cotangent theta, and this is equal to 1 upon sec theta or secant theta, and this is equal to 1 upon cosecant theta or cosec theta. So if you have to write cosecant theta, you just have the reciprocal of this. आपने क्या करना है, कोसेकेंट थीटा के लिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है h अपॉन पी. सेकेंट थीटा उल्टा है कॉस का, तो ये बन जाएगा h अपॉन बी. ऐसे ही कॉट थीटा जो उल्टा है, इधर भी लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, उधर भी लिखा है, तो ये बन जाएगा tan थीटा का उल्टा, देन b अपॉन पी. तो ये आपको ऑलरेडी आता है, प्रिज्यूमिंग एंड अज्यूमिंग दीज थिंग्स दैट यू नो ऑलरेडी दीज t ratios. What are the definitions? The simple definition, you have to divide this by this and then this by this. So ये बन जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. इससे आप तीनों रेशियो ले सकते हैं, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. So ये हो जाएगा आपका P upon H, P upon H, P upon B. Ratios are known to you. You can do it very easily. So these things are known to you. Now I directly come to this signs of t ratios. What are the various signs in various quadrants? First of all, we will be knowing what are the quadrants. Some formulas are also there. I will come to the formulas later on. This is for 10th class also. And for 11th class, you have to have the angle in all the 4 quadrants. Here we have 4 quadrants. This is, you know, y positive, y and y dash, y negative, x positive and x negative, x dash or O. So which is the first quadrant? Which is the first quadrant? This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. You must know the quadrants. Students sometimes start from here. कई बार तो यहाँ से शुरू कर देते हैं. So you have to start from here. 1, 2, go to this anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means जो clock के उल्टा चलती है. तो ये डायरेक्शन है उसकी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसमें साइन कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं? यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, ऑल. व्हाई दीज आर पॉजिटिव आई विल टेल यू लेटर ऑन. आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाई दीज आर पॉजिटिव. ऑल t ratios are positive. Then here only sin theta is positive, sin and cosecant. Here tangent
and cotangent are positive. And here fourth quadrant only cos and secant theta are positive. बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव. तो why this happens? यहाँ पर सारी छेद की छह जो टी रेशियोज हैं ये पॉजिटिव होती हैं. यहाँ पर सिर्फ साइन और सीकेंट होते हैं, टेन और टेंजेंट यहाँ होते हैं, पर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. यहाँ पर कॉस और सीकेंट होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं. तो साइन और सीकेंट जो है यहाँ पर हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. अब ये क्यों है? ये जो साइड है ये पॉजिटिव होती है, ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड नेगेटिव होती है और ये साइड नेगेटिव होती है. और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. टेक इट एज हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है. तो ये वाली पॉजिटिव साइड है, ये वाली पॉजिटिव साइड है. तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सारे जो टी रेशियोज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे. ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज ऑल साइड्स आर पॉजिटिव. तो जब भी डिवाइड करो, किसी को भी डिवाइड करो तो पॉजिटिव ही आएगा. और यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. हाइपोटेन्यूज से हमेशा ही पॉजिटिव होता है. परपेंडिकुलर सॉरी पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज से हमेशा ही पॉजिटिव होता ही है. तो जिन टी रेशियोज में ये और ये आएंगे वही पॉजिटिव होंगी, बाकी में नेगेटिव आएगा. देखिए साइन थीटा क्या है? व्हाट इज साइन थीटा? पी अपॉन एच, पॉजिटिव हो गया. और सेकंड थीटा एच अपॉन पी, पॉजिटिव हो गया. अब कॉस थीटा क्या होगा? फॉर एग्जांपल कॉस थीटा आपने पढ़ना है. कॉस थीटा क्या होता है? ये अपॉन ये, तो नेगेटिव अपॉन एच तो प्लस का ही रहता है, तो ये नेगेटिव है. ऐसे टेन थीटा जो है और सेक थीटा अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये उसका ऑपोजिट है, रिवर्स है. और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होता है दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये भी पी अपॉन बी, पी क्या है इसमें? पॉजिटिव है, और बेस क्या है इसमें? नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है. तो कॉट में अपने आप, कॉट इसका उल्टा है, वो भी नेगेटिव आ जाएगा. कॉस रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का सीकेंट और या सेक है, तो वो भी नेगेटिव है. इसी तरीके से हम सारे टी रेशियोज देख सकते हैं कि इसमें कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा. ये नेगेटिव है, देखो नीचे को चला गया, ये पॉजिटिव ही होता है, ये दोनों नेगेटिव है. और जहाँ पर आपका बेस अपॉन पी जो है, बेस अपॉन पी जो है, या पी अपॉन बी आएगा. पी अपॉन बी जो है टेन थीटा है, तो टेन थीटा पी अपॉन बी है, तो दोनों नेगेटिव में कट गए, तो टेन थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव. माइनस नेगेटिव अपॉन नेगेटिव. देखिए व्हाट इज टेन थीटा? पी अपॉन बी. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, फिर याद कर लो, अगर नहीं आता है तो इसको याद रखो. पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल. ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, तो अपने आप ये ठीक याद रह जाएगा आपको. तो पी अपॉन बी, टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव. ऐसे ही यहाँ पर बाकी सारे, क्योंकि एक चीज़ नेगेटिव आएगी सारे नेगेटिव हो जाएंगे. इसमें क्या है? ये पॉजिटिव है, बेस जो है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज. देखिए कितना आसान है. तो ये इसमें कॉस थीटा जो है परपेंडिकुलर जो है ये नेगेटिव है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों प्लस के हो गए, तो ये पॉजिटिव हो गए. बाकी सारे नेगेटिव है. पी नेगेटिव है तो साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा भी, कॉस थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा. ये दो जो हैं इस केस में नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी ये वाला जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये कॉस थीटा हो गया. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. वी विल कंटिन्यू इट विद these T ratios tomorrow also, and hope you will learn these things. Learn the formulas also. I will give you formulas also. So learn these things, and we will repeat it
we'll come to some other topics also. Till then, thank you. Have a nice day.